دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گائیڈنس کے لیے کہ دنیا میں ناانصافی نہ ہو، جب ان کا معاشرہ رہے گا، دنیا میں انسانوں کا معاشرہ رہے گا، سوسائٹی رہیں گی، تو اس کے اندر یہ سب باتیں ہوں گی، تو یہ باتیں نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھی دی، یہ کس طریقے سے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات ہونا چاہیے، سوسائٹی میں کیسا رہنا چاہیے، ہمارے لوگوں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں کے ہمارے ساتھ کیسے معاملات ہونا چاہیے، اس کے لیے گائیڈنس دی۔ اور دوسری بات یہ، جب انسان کو اللہ نے بنایا اس ٹائم پہ شیطان جو اللہ کی مخلوق ہے، جس کے بارے میں پہلے چیپٹر میں بتا دیا میں نے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان فرشتے جو ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اور شیطان کے تعلق سے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آگ کے شعلے سے بنا ہوا ہے، آگ کی گرمی سے بنا ہوا ہے۔ تو شیطان جو ہے، یہ جو جن ہے، جن یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے پیدا کی تھی، ان کے اندر بھی ہدایت کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ جن کو اس کا بارے میں پورا قصہ ہو گیا کہ جن کو انسان سے کیا دشمنی ہے، وہ پچھلے چیپٹر میں نے تفصیل بتا دی۔ تو جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس ٹائم پہ شیطان جو تھا، شیطان کے دل میں انسان سے دشمنی پیدا ہوئی اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں اس انسان کو، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، یہ میں گمراہ کروں گا اور اس کو دوزخ میں پہنچاؤں گا۔ اور اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ تو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا یہ دوزخ میں جانے والا پائے گا، تیری ہدایت پہ چلنے والا نہیں پائے گا، ایسا چیلنج کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چیلنج قبول کیا، منظور کیا، اس کو موقع دیا، اس کو چانس دیا۔ شیطان نے قیامت کے دن تک، دنیا کے اینڈ تک کا ٹائم مانگا ہے کہ میرے کو دنیا کے اینڈ تک کا ٹائم دے، میں اس کو جو ہے نا گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا تو جا، اس کو تیرے کو ہر قسم کا میں فری اینڈ فیئر موقع دیتا ہوں، تو اس کو گمراہ کر۔ اور اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ میں، میرے جو مخلص بندے ہیں جو مجھے پہچانیں گے، کائنات کو دیکھ کے، یہاں کی طاقتیں اور یہاں کی وسعتیں، یہاں کی ہر چیز دیکھ کر جب جو لوگ میرے کو پہچانیں گے اور میری صحیح ہدایت پہ چلیں گے، اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان کا انسان کے اوپر کوئی بس نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان ہے یا پورے جن ہیں، پوری کائنات کی پوری مخلوق، پوری کریشن اللہ کی، اگر انسان کو یا کسی چیز کو، ایک دوسرے کو اگر نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم اس میں شامل نہ ہو۔ اس لیے شیطان انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صرف اس کو جو ہے نا پرمیشن اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کے لیے دیا کہ وہ انسان کے خیالات میں کچھ خیالات لا سکتا، کچھ وسوسے پیدا کر سکتا اور کچھ خیالات پیدا کر سکتا انسان کے اندر، زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ کام نہیں کرا سکتا۔ تو یہ جب شیطان نے ایسے چیلنج کیا تو اللہ نے جو ہے تو دنیا میں انسانوں کے ہدایت کا انتظام پہلے دن سے ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے، جو پہلے انسان ہیں، تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا اور اپنی ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں جو ہے نا پیغمبری کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی اولاد کے اندر کنٹینیو پیغمبر آتے گئے، جب بھی اس کی ہدایت، اللہ کی ہدایت، جو لوگ، جو معاشرے کے لوگ بھلا دیتے تھے، گم کر دیتے تھے، یا اس میں کچھ غلطیاں کر دیتے تھے، کچھ ملاوٹ کر دیتے تھے، تو نیا پیغمبر فوراً سے آ جاتا تھا تاکہ وہ ہدایت کنٹینیو رہے، اللہ کی گائیڈنس کنٹینیو رہے۔ کیوں؟ تو شیطان جو ہے وہ تو کنٹینیو اپنی گمراہی پھیلا رہا ہے۔ وہ شیطان ایک دن کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں رہتا۔ شیطان کو معلوم ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، انسان کو نہیں معلوم، انسان غافل ہے، انسان کو یہ بالکل نہیں معلوم کہ کب قیامت آئیں گی اور میرا کب وقت ختم ہوگا یا کب میں مر جاؤں گا۔ حالانکہ انسان کی عمر زیادہ نہیں ہے، جو بھی عمر ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال، جو بھی عمر ہے، وہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کب مروں گا۔ مگر شیطان کو پکا معلوم ہے، کیونکہ شیطان دیکھ چکا ہے، اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس وہ رہ چکا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ میں نے جو ٹائم مانگا ہے قیامت تک کا، دنیا کے اینڈ کا، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس لیے اس کے پاس، اس کو احساس ہے۔ تو وہ شیطان جو ہے رات دن ایک ایک سیکنڈ تک بزی رہتا ہے۔ اس کے شیطان اور اس کے پورے ماننے والے، اس کے فالوور، اور اس شیطان کے بھی فالوور ہیں، شیطان جنوں میں سے، تو جنوں میں بھی اس نے اپنے فالوور بنائے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی آرمی ہے شیطان کی، وہ سب لے کے انسانوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور ایک سیکنڈ بھی غافل نہیں رہتا۔ انسان غافل ہے اللہ کی ہدایت سے، کائنات کو دیکھ کے بھی اللہ کو نہیں ماننے سے، پوری کائنات کی ہدایت دیکھ رہے ہیں۔ جو ماڈرن سائنٹسٹ ہے وہ دنیا میں تحقیق کر رہے ہیں، اپنے اکوپمنٹ سے ہر چیز سائنس سے معلوم کر رہے ہیں، مگر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کی غفلت ہے، اور شیطان اس غفلت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ شیطان کنٹینیو کام میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت جو دی، کنٹینیو دی۔ ایک ہدایت جب ختم ہوئی، جب تک ایک ہدایت باقی رہتی تھی دنیا میں، جب ایک پیغمبر آتے تھے، جب ایک پروفٹ آتے تھے، اپنی ساتھ ہدایت لاتے تھے، وہ پروفٹ کون ہوتے تھے؟ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ چنتا تھا، انسانوں کی اولاد میں سے کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا تھا، ایک اعلیٰ درجہ دیتا تھا، بڑا اونچا درجہ دیتا تھا، بہت معزز رہتے تھے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا گائیڈنس دینے کے لیے، اپنا میسنجر بنانے کے لیے سلیکٹ کر لیتا تھا، اور سلیکٹ کر کے اپنی ہدایت اپنے فرشتے کے ذریعے سے ان کو دیتا تھا۔
जिसको वही बोलते। और वो जो गाइडेंस है अल्लाह की, जो भी गाइडेंस है, अल्लाह ताला वो बंदे पे इंस्पायर करता था। और वो जो बंदे हैं जो प्रॉफिट बन के अपने सोसाइटी में आते थे, वो लोगों को गाइडेंस बताते थे। वो ये बताते थे कि देखो ये कायनात का बनाने वाला एक अल्लाह मौजूद है। पहले जमाने में, आज से हजारों साल पहले, जदीद साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो जो भी उन जमाने में हालात थे, जो भी मालूमात थी, जो भी देखते थे सितारों को, चांद को, जमीन को, इसके रेफरेंस देके, हवाले देके, वो प्रॉफिट ये बोलते थे कि ये कायनात का बनाने वाला एक मौजूद अल्लाह मौजूद है, और इसकी ये हिदायत है। वो ये ऐसा बोलता है कि आपस में ऐसा रहना है, ये मामला करना है, ये ऐसा करना है, ये जुल्म नहीं करना है, ये करना है, ये बताते थे वो लोग। ये बातें उनके कौम में रहती थी। वो जो पैगंबर थे, प्रॉफिट थे, वो इंसान रहते थे, और वो कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल होते चले जाते थे। उनकी गाइडेंस अगर उन लोगों में, सोसाइटी में बाकी रहती थी, तो वो चलती रहती थी। प्रॉफिट का जो आने का मकसद, जो उनका जो एम है, अल्लाह ताला जो हिदायत देता है इंसान को, उसका एम क्या है, इंसान की पैदाइश का एम क्या है, प्रॉफिट का एम क्या है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। जब तक हमको ये एम मालूम नहीं होगा, हर चीज का, किसी चीज का भी, जब तक एम मालूम ना होगा, तो हम गुमराही हमको पैदा होंगी। तो हमको इसका एम मालूम नहीं है, हमको कहाँ जाना है ये नहीं मालूम है। हम जैसा फर्ज करो किसी बस में बैठे हैं और बस कहाँ जा रही है हमको नहीं मालूम, तो हमको क्या मालूम कि हमारे तो फिर मुख्तलिफ ख्यालात होंगे, शायद इधर जाती होंगी, शायद उधर जाती होंगी, शायद यहाँ रुकती होंगी बस, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि हम किस बस में बैठे हुए और कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जब हमको अपना एम मालूम न होता, ऐसे ख्याल पैदा होते। मगर जब हमको मालूम है एम कि ये बस यहाँ जा रही है, तो हमको पता है कि कौन कौन से स्टेशन पे रुकेंगी, कितना कितना देर रुकेंगी, और हम कब पहुंचेंगे, सब मालूम होता है। वैसा ही ये कायनात के अंदर इंसान की पैदाइश का, और हम हमारी हिदायत का, और प्रोफेट के आने का, जो पैगंबर है उनके आने का एम अगर हमको नहीं मालूम हो, तो हमारे हमारे दिल में उनके ताल्लुक से मुख्तलिफ ख्यालात पैदा होते। तो मैं ये बता रहा था कि प्रोफेट का और एम आने का ये है कि अल्लाह ताला जो इंसान की हिदायत करना चाहता है, अल्लाह ताला ने कायनात को जो बनाया है वीडियो गेम की तरह बनाया है। वीडियो गेम की तरह प्री डिटरमाइंड उसका स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, सब वीडियो गेम में जैसी स्क्रिप्ट लिखी होती है, प्रोग्राम लिखा होता है, वैसा लिखा हुआ है। अब हमारे को स्किल दिया है, अल्लाह ताला ने फ्री विल दिया है कि अपनी स्किल से हम उसके ऊपर चल सकते, और चल के हम सही रास्ते पे पहुंच सकते, जन्नत में पहुंच सकते, अल्लाह के इनाम की तरफ पहुंच सकते। और अगर हमने स्किल का खराब मुजाहरा किया, खराब स्किल की, तो शैतान के रास्ते पे चल सकते और गुमराह हो सकते और दोजख में जा सकते, जो शैतान की ख्वाहिश है। तो इस ख्वाहिश को शैतान की पूरा ना हो, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को गाइडेंस दी। और वो गाइडेंस जो है ना, अपने प्रोफेट के थ्रू दी। और वो गाइडेंस कैसे दी कि अपने सोसाइटी में, क्योंकि इंसान दुनिया में जिंदा है, दुनिया में रह रहा है, तो दुनिया में रहने के कानून, कायदे, रूल्स, रेगुलेशन अल्लाह ने वो प्रोफेट को दिए। और वो रूल रेगुलेशन सोसाइटी के लिए है। अल्लाह ने किसी एक इंसान के लिए नहीं दिया कि तुम जाओ पहाड़ पे बैठो और वो वहां पे इबादत करो। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया इंसान को, इंडिविजुअल के लिए कोई कानून नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सोसाइटी के लिए कानून बनाया। एक जो इंसानों की जो सोसाइटी है, उसके लिए कानून, रूल्स, रेगुलेशन है, जो सोसाइटी में लागू होते हैं, सोसाइटी के हर एक लोगों पे लागू होते हैं। ऐसे कानून वो प्रोफेट को दिए। और वो कानून ऐसे होना चाहिए जो जब इंसानों की सोसाइटी के लिए है, तो इंसानों के ऊपर लागू होना चाहिए, इंसानों को उस पर अमल करना चाहिए। ऐसे कानून होना चाहिए जिसपे इंसान अमल कर सके। ऐसे कानून अगर होते जिस पे इंसान अमल नहीं कर सकते थे, तो फिर वो कानून इंसानों पे लागू नहीं होते। जैसा मशीन लॉ है, जो लॉ जो मशीन के होते हैं वो मशीन पे लागू होते हैं, इंसान पे लागू नहीं होते। अगर कोई मशीन का लॉ, मशीन का कानून, मशीन के जो एक्सप्रेशन है, हिसाब किताब के जो फार्मूले हैं मशीनों के, वो अगर इंसानों पे लगा दे, तो इंसान काम कर सकता है? वैसा नहीं कर सकता। वैसा अगर इंसानों के कानून जो है वो इंसानों पे लागू हो सकते हैं, मशीन के कानून मशीन पे लागू हो सकते हैं। वैसा जो अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए जो कानून, जो गाइडेंस जो फराहम किया है, हिदायत, वो ऐसी है कि जो इंसान के माशरे पे, इंसान की सोसाइटी पे लागू हो सकते। तो वो सब कायदे कानून जो है तो अपने प्रॉफिट के जरिए दिए। और प्रॉफिट कौन है? उसको भी इंसान इसलिए बनाया कि प्रॉफिट वो कानून लाएंगे और उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, खुद भी अमल करेंगे, खुद अमल करके दिखाएंगे, लागू करके दिखाएंगे। कि तो प्रॉफिट तो अल्लाह की तरफ से अकेला होता है, उसके साथ शुरू में तो अकेला ही होता है। जब अपनी दावत पेश करता है उसके बाद फिर लोग जमा होना शुरू होते हैं। जब वो अकेला होता है तो वो जो पूरे कायदे कानून अपने ऊपर लागू करता है, करके दिखाता है, और वो खुद करके दिखाता है। वो प्रॉफिट जो है एक रोल मॉडल होता है, एक मॉडल होता है, एक एग्जाम्पल होता है, जिसको एसओपी बोलते हैं। जैसा फैक्ट्रीज में, कारखाने में एसओपी होता है। एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी जो कारखाने के मैन्युफैक्चरिंग के जो कायदे कानून रहते, वो जो कैसा चलना, कैसे प्रोसेस है, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, उसको एसओपी के थ्रू चलता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तरह चलता है। वो प्रोसीजर ऐसा होता है, एक बार बना देते, जो फैक्ट्री के बनाने वाले जो इंजीनियर है, उसके जो मालूमाती लोग हैं, नो हाउ वाले हैं, टेक्निकल नो हाउ वाले, वो एसओपी बना के लोगों को देते, लेबर को देते, काम करने वालों को देते, और फिर वो लोग चले जाते।
वो जो एसओपी बनाने वाले इंजीनियर से चले जाते कारखाने में से। उसके बाद कारखाना 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल चलते रहता, उसी एसओपी को फॉलो करते रहता, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करके वो कारखाना चलता, प्रोडक्ट बनाता और तरक्की करता। वैसा ही जो प्रॉफिट है वो एसओपी लेके आए हैं, अल्लाह की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेके आए हैं, ये दुनिया का कैसा चलना है, कैसे हालात है, कैसे मामलात है, और वो अपने दिखाते, इंप्लीमेंट करके लागू करके चले जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता। उसके बाद उस सोसाइटी के लोग उस एसओपी के ऊपर अमल कर सकते हैं, उनके अल्लाह की हिदायत पे अमल कर सकते हैं। इसलिए वो जो पैगंबर है वो उनका इंसान होना जरूरी है। शुरू से पहले जमाने में जब पैगंबर आए, पहले हजारों साल पहले, लोगों ने उनको इतराज किए, ये तो हमारे में का एक आदमी है, हम में का आदमी ये कैसा पैगंबर हो गया, ये हमको कैसा हिदायत कर रहा। क्योंकि तो उनके दिल में डाउट था कि अगर ये इंसान है तो पैगंबर नहीं हो सकता और प्रॉफिट नहीं हो सकता। वो समझते थे कि प्रॉफिट के लिए एक फरिश्ता होना जरूरी है, आसमान की कोई दूसरी मखलूक होना जरूरी है, ताकि हम उसको प्रॉफिट माने। इंसान को प्रॉफिट मानने को तैयार नहीं थे, मगर इंसान को प्रॉफिट बनाने के पीछे मैं आपको पहले चैप्टर में बता दिया हूँ कि इसके पीछे हिकमत ये है कि अगर वो इंसान है तो ही वो इम्प्लीमेंट कर सकता और करके दिखा सकता और इंसानों के माशरे के लिए कानून और कायदे बना सकता, और उसके ऊपर दूसरे लोग भी अमल कर सकते। अगर फर्ज करो वो प्रॉफिट इंसान ना होते, कोई मखलूक होते, कोई दूसरी फरिश्ते होते, या कोई अल्लाह की ताकत होते, जिन होते, तो अगर वो कोई काम करके दिखाते, कोई माशरा कायम करके दिखाते, कोई कानून कायदे बना के एक अच्छा माशरा कायम करके दिखा के चले जाते, तो उसके बाद लोगों के से हम उम्मीद करते, उनके मानने वालों से, कि तुम भी ऐसा करो, ये कानून कायदा अल्लाह की हिदायत पे तुम अमल करो। तो लोग ये बोल सकते थे, लोगों के पास ये चांस था, ये ऑब्जेक्शन था, अल्लाह को ये बोल सकते थे। कल अल्लाह अगर क़यामत के दिन पूछता था कि तुमने दीन लागू क्यों नहीं किए, दीन पे क्यों नहीं चले, तुमने अच्छा माशरा क्यों नहीं बनाए जैसा कि प्रोफेट ने करके दिखाए, तो हम ये बोल सकते थे कि वो प्रोफेट तो इंसान नहीं थे, वो तो फरिश्ता थे, उन्होंने जो किया वो कर सकते थे, वो जो फरिश्ता जो काम कर सकता वो हम थोड़ी कर सकते। हम ऐसा बोल सकते थे और अल्लाह हमको पकड़ नहीं सकता था, अल्लाह के पास हमारी गिरफ्त नहीं हो सकती थी। हम तो ये बोल सकते थे अल्लाह को कि वो जो प्रोफेट ने जो काम करके गए, जो माशरा कायम करके गए, जो काम किए उन्होंने, हम नहीं कर सकते हो, कि तो वो तो फरिश्ते थे, वो तो इंसान थे ही नहीं, वो तो फरिश्ते थे। तो ये बात ना हो, इसीलिए पैगंबरों का इंसान होना जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इंसान बनाया। और ये बात हमको क्यों नहीं मालूम है, आज हम लोगों के दिल में, मुसलमानों के दिल में ये बात बैठी हुई है कि जो पैगंबर रहते, जो मैसेंजर रहते, वो इंसान नहीं है, वो जो है इंसान नहीं होते, ऐसा समझते। और वो ये समझते कि उनको इंसान बोलना गुस्ताखी है। बहुत सारे लोग ये समझते कि किसी पैगंबर को, किसी प्रॉफिट को अगर इंसान बोला तो उनकी गुस्ताखी हो गई। उनकी गुस्ताखी नहीं है, ये इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, पूरी मखलूक से अशरफ है। जितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, सब में अफजल और अशरफ मखलूक इंसान है। अगर तुम किसी अशरफ मखलूक को अगर कोई उससे कमतर मखलूक बताएंगे, कोई मखलूक अशरफ है, अशरफुल मखलूकात है, और उसको बोलेंगे तुम ये है, कम दर्जे की मखलूक है, वो उसकी गुस्ताखी है। ये जो इंसान होना तो अशरफुल मखलूकात है। तो हमारे बहुत सारे लोग के दिल में ये इंसान, नबूवत का, पैगंबरों का और प्रॉफिट का आने का मकसद नहीं मालूम है। पिछले 1440 साल में हम लोग भूल गए वो मकसद, प्रोफेट का, अल्लाह की तरफ की हिदायत का और पैगंबरों के आने का मकसद भूल गए। हमको एम नहीं मालूम है, इसलिए हमारे दिल में ये ऐसे ख्याल पैदा हो रहे हैं कि हमारे दिल के लोगों के माशरे में ये बात पैदा हो गई कि प्रॉफिट जो है इंसान नहीं होते। प्रॉफिट जो है बहुत हायर चीज है, वो हायर मखलूक है, लाइट है या नूर है। अगर वो इनको ऐसा बोलना उनकी गुस्ताखी है। नूर और लाइट और दूसरी कोई मखलूक जो है हायर मखलूक नहीं है, इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है। बाकी दुनिया, अल्लाह की सारी कायनात की जितनी मखलूक है, जितनी क्रिएशन है, वो कम दर्जे की मखलूक है। अगर तुम किसी हायर दर्जे की मखलूक को कम दर्जे की मखलूक बोलेंगे, ये गुस्ताखी है। अगर किसी को प्रॉफिट को अगर इंसान बोलेंगे, ये गुस्ताखी नहीं है। और उनका इंसान होना तो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास कोई हुज्जत ना हो, हम कोई ऑब्जेक्शन ना लो। कल को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगर मुसलमानों से पूछेगा कि तुमने ये माशरा क्यों नहीं अच्छा कायम किया, दुनिया में अल्लाह के मेरे कानून, मैंने जो हिदायत दिया था, गाइडेंस दिया था, उस पर क्यों नहीं चले, तुमने अच्छा माशरा क्यों नहीं बनाए, तो हम ये बोल सकते कि हमारे जो प्रॉफिट थे वो तो इंसान नहीं थे, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो कायम करके दिखाया, नमूना दिखाया, रोल मॉडल जो हमारे लिए नहीं थे, वो क्यों, तो वो तो फरिश्ता थे, वो तो नूर थे। तो अगर हम दुनिया में उनके जैसा कायम नहीं कर सकते, कि तो हम तो इंसान है, ये काम हम वो ही कर सकते थे फरिश्ते, और हम नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्शन हो जाएगा क़यामत के दिन। और ये बात हमारे दिमाग से निकल चुकी है। पिछले 1440 साल के बाद, हमारे 1440 सालों में हमारे दिमाग से पैगंबरों के आने का एम निकल चुका है। इसकी वजह से ये सारे इबहम पैदा हो रहे हैं।